27 साल एक इंडस्ट्री के अंदर रहना बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में बहुत आसान लगता है बट एक्चुअल में इट्स वेरी हार्ड। इसके लिए बहुत ज्यादा पैशन होना जरूरी है, zeal टू ग्रो एंड रेजिलियंट। आज हम ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं who seen the evolution in a beauty industry from basic to luxury. Let's welcome powerhouse of experience Shweta Acharya ma'am from Ahmed Salon 2013. Thank you, Apurva, for giving me such a beautiful opportunity to share my inputs over the experience of this evolution of the beauty industry for last 27 years, just nearing 3 decades. Yes, definitely मैम। आप 27 साल से इस ब्यूटी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो आपकी शुरुआत कैसी हुई और आपको इस पूरे मतलब इतने सारे साल में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? Apurva, firstly, though, I really feel very satisfied, very surreal over these 27 years, what I've worked in this industry, given my heart and soul, given everything what possibly I could do to evolve with the industry evolving. Yes. So basically, I started my career in 1998 and just after my 12th. Okay. And it was not my endeavor to get into this industry. It was my nani's. Like at that time, she had that vision that this is an industry which will give me a passion, a confidence to be my own. Yes. So she had that vision that every girl of our house should be independent, a working girl, a working woman, and should never look up to somebody for their own personal needs. So she pushed me in initially, and when I joined a small ladies beauty parlor at Indore, where I belong to, MP. So that was the time there was no concept of unisex salons. Okay. There was a concept of a ladies beauty parlor only or a men's barber shop. Correct. ठीक है. So मैंने अपने करियर की शुरुआत वहां से की, जब लेडीज ब्यूटी पार्लर में लेडीज सिर्फ ओकेजनली कुछ फंक्शन है, घर में कोई शादी है या कोई जन्मदिन है तो वो आते थे। बिल्कुल। और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस में आईब्रो अपर लिप होती थी। बिल्कुल। बहुत हो गया तो कोई वैक्स कराने आता था। Okay. सो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, आई डोंट नो अबाउट यू, यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, आईब्रोज जैसी एक बेसिक सर्विस वॉज जस्ट 15 रुपीज। ठीक है। Okay. So now to 15 rupees to some premium brands charging 200, we charge still very less, 60-70 rupees at our salon. But उस जगह से लेके यहाँ तक का जो सफर रहा, जिसमें 110% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरी डॉटर का, एंड not other than my team. Yes. I have a very strong team. Yes. बहुत पुरानी टीम है मेरी। Yes, and that is what is my strength today. Yes. Evolving of this industry from a ladies beauty parlor, या घर में आप रह के काम कर सकते हो, हस्बैंड ऑफिस गया है, 2-3 घंटा निकाला है और आप अपना काम कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो, उससे एक प्रीमियम ए कैटेगरी सैलून तक आने की जो जर्नी है, which has a lot of things to share. Okay. Which I think we will discuss. Yes. आगे जाके हम उसको कवर करेंगे डेफिनेटली। Yes. बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, एक नॉलेज रहेगा हमारे लिए भी, और आजकल जो भी ये इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली वो एक पाथ उनको मिल जाएगा कि I really hope so I could do that. Yes, definitely. क्या आपके इस पूरे सफर में आप कभी ऐसा टाइम आया था कि जब आपने सोचा था कि अभी मुझे इसको बंद करना है, और ऑफ कोर्स आपने बंद नहीं किया क्योंकि आज भी आप काफी अच्छी तरीके से सैलून रन कर रहे हो, बट उस जो एक सिचुएशन होती है वो सिचुएशन से आप कैसे उभरे, आपने कैसे उस फेज को पास किया? एग्जैक्टली बंद करने का तो कभी नहीं सोचा, बट यस, देयर आर डेफिनेटली डाउन इन एवरी इंडस्ट्री, एवरी डाउनफॉल इज देयर. द मेन थिंग व्हाट आई ऑलवेज focused and I always thought of, one word which has been in my inside self is never settle, never be comfortable. The moment you go into your comfort zone, you will never progress. You should always have the urge
of knowing more, growing more, learning more. True. After 27 years also, I feel that I need to learn more. I just finished one more certified course 2 years back, which was not known to me. That industry is new to me, but I still learned it because that was now the part of wellness and beauty industry. So it is never an end to learning and never an end to grow. So never settle in less when the universe is there to give you more. Yes. I always believed, so there was phases where we thought that this place is not giving us that potential what we deserve. So we decided to relocate ourselves. Okay. So the relocation definitely gave us a growth, definitely gave us an endeavor to work more, definitely gave us more passion, more I would say more resilience to grow and to work more harder and harder. बिल्कुल. So basically आप किसी भी इंडस्ट्री में आप ग्रो करेंगे, अगर करना चाहते हैं, कोई भी टाटा अंबानी बिरला रातों रात टाटा अंबानी बिरला नहीं बना है. हमारे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप BLCC एज अ ब्रांड बात करें, आप एनरिच एज अ ब्रांड बात करें, आप हकीम अली जैसे ब्रांड बात करें, he is a sole inspiration to me. I have always seen Hakim Ali sir like a big inspiration from where he has started and where he is now. I think हमारी country का highest paid hairdresser is Hakim Ali sir. Yes. So I think लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि आज भी he is so humble. Yes. He is so down to earth. He is so positive about everything changing and he is also evolving himself. So why not us? So हमें हमेशा हमारे से ऊपर वालों से ये नहीं देखना है कि वो कितना कमा रहे हैं, हमें वो देखना है कि उनसे हम क्या सीख के वहां तक पहुंच सकते हैं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी हर कोई उस लेवल पे पहुंचेगा. आप जिस लेवल पे हो उसमें आप बेस्ट होने चाहिए. आई हैव ऑलवेज बिलीव. So when I started my career 27 years back, it was 100 square feet room. एक बेड, एक चेयर, एक प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते थे. हम घर में ही सैलून चलाते थे, जमीन पे बैठ के पेडिक्योर्स करते थे, टब के अंदर. अब आप देखो ये इंडस्ट्री में कितनी सारी इवोल्यूशन है, आपके पास कितने सारे टूल्स हैं, कितनी सारी मशीनरीज हैं, कितना रिफाइंड वर्क है. बिल्कुल. सो यू हैव टू बेसिकली इवॉल्व विद द वर्क. जो छोटे भी सैलून्स चला रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट आपको हमेशा एक कैटेगरी करना है. जो छोटे भी चला रहे हैं, द मेन थिंग शुड बी हाइजीन एंड गिविंग ऑनेस्ट सर्विस. आप जो कह रहे हो आपके कस्टमर को कि आप ये फेशियल करेंगे या ये हेयर सर्विस करेंगे, उसी चीज को आप कंटिन्यू कीजिए. डोंट थिंक कि इसको कुछ पता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कस्टमर्स में यू मे फूल देम वंस or twice, but you cannot fool them forever. They will come to you once or twice, then they will never come back to you. That's so. And going one customer will minus more 10 customers. I always believed in that. So I have never used or faked my clients. That is what is my motto always and till date. जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका जो मतलब आप एक मेंटोर बोल सकते हो, मेंटोर जो मॉडल है आपके, जिसको रोल मॉडल, जिसको देख के आप, तो जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे आपके रोल मॉडल कौन थे? क्योंकि उस टाइम पे तो अलीम हकीम सर भी इतना वेल नोन नहीं थे, वो आज है. आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम शहनाज हुसैन. हमारे टाइम पे शहनाज मैम वाज द मोस्ट प्रीमियम ट्रेडमार्क. उनके प्रोडक्ट लाइन, उनके ट्रीटमेंट्स, सब कुछ वही वॉज द बिगेस्ट. एंड ब्लॉसम कोचर मैम. सो ये दो जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट थे, ये दोनों हमेशा मेरे रोल मॉडल. सो उनको रोल मॉडल देखते हुए जब मैं दिल्ली गई थी अपना एग्जाम देने, शहनाज हुसैन का जो डिप्लोमा है उसका एग्जाम सिर्फ दिल्ली में ही होता था. उन्हीं के सेंटर में होता था, उन्हीं की ट्रेनर्स उस एग्जाम को लेती थी. हम कोर्स कहीं से भी शहनाज के किसी फ्रेंचाइजी से कर लें, बट हमारे एग्जाम देने हमें दिल्ली जाना पड़ता था. तो जब हम जा रहे थे तो जो मेरी टीचर थी उन्होंने मुझे बोला, वहां पे जो शहनाज का फेशियल तब हुआ करता था, विच यूज्ड टू हैव सम 130 स्ट्रोक्स इन द एंटायर फेशियल. वो 130 स्ट्रोक्स आपको वन स्ट्रोक वन टाइम करना है डमी पे, तब आप एग्जाम क्लियर करते हो. अच्छा. सो हमें इतनी प्रैक्टिस कराई गई
कि one stroke one time, if you do one stroke second time they will disqualify you, then you have to reappear in the exam in next session. Oh, It was so difficult, it was so strict. Actually. And that trainers, I still remember, she was so ruthless, people were crying. और अब हम देखते हैं बच्चे जो आते हैं, जो नया जनरेशन आता है, वो घुसते ही बोलते हैं मुझे सब आता है. हाँ, सच्ची है. वो आते ही एक एकेडमी से जस्ट पास आउट हुए एंड दे सेड मुझे सब आता है. यू डोंट हैव टू टेल मी एनीथिंग. दैट्स ट्रू. हम आज भी सीखते हैं. आज भी कोई ट्रेनर आता है, ऑफ कोर्स वो मुझसे शायद जूनियर ही होगा, जो भी अब नए आते हैं, बट स्टिल आई टेल देम आई लर्न फ्रॉम यू बिकॉज यू आर गेटिंग न्यू टेक्निक्स नाउ. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. So never stop learning. That is one very important thing. Never think I know everything. Yes. Because we really don't know anything. Yes. At 27 years of experience, I still say I really don't know anything. And मैं अपनी टीम से भी सीखती हूँ. कोई नई ब्यूटिशियन आती है, कोई नया स्टाइलिस्ट आता है अगर हमारे यहाँ, उनके पास भी कोई ना कोई ऐसी एक टेक्निक होगी जो हमें नहीं पता है. वो किसी जगह से सीख के आए हैं, वो किसी ट्रेनर से सीख के आए हैं, किसी से सीख के. So 27 years is just a number, Apurva. I think it's yet more to go ahead. Yes, yes, definitely. जैसे कि आपने अभी बोला था कि बंद करने का कभी आपने सोचा नहीं, बट कुछ सिचुएशंस जो है वो ऐसी आती है कि डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं. कभी कभी आगे का कुछ दिखता नहीं है, ऐसे होता है कि अब मैं क्या ही करूंगी, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कुछ टाइम में ऐसे जाता है. तो उस टाइम में आप खुद को कैसे एनकरेज करते हो, या खुद को कैसे एनर्जेटिक रखते हो, या सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढते हो? आई थिंक इसमें एज अ एंटरप्रेन्योर आई विल से आपकी टीम कैसी है. इसमें एक और चीज है, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है. हाँ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है. ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं होता कि हर किसी का बेस्ट टाइम रहता है. हाँ, हाँ. ऐसा डेफिनेटली होता है कि आपका डाउन टाइम आता है. और वो हर बिजनेस, हर लाइफस्टाइल में आता है. आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक डाउन टाइम आता है. उस टाइम पे आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट और आपकी जो टीम है वो कैसी है, वो बहुत मैटर करती है. Okay. मेरे केस में मेरी फैमिली वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी. मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स और मेरी ग्रैंड मदर, दे वर ऑलवेज सो स्ट्रॉन्ग अबाउट मी कि नहीं सोचना है नेगेटिव. Okay. आगे बढ़ो. आगे बढ़ो, कोई बात नहीं. फाइनेंशियल इश्यूज है, हम है सपोर्ट करने के लिए. ऑफ कोर्स बिजनेस में माइनस में हम जाते ही हैं. बीच में जो एक फेज आया था अभी रिसेंटली कोविड का, दैट वाज वन फेज जो हर किसी को डाउन लेके गया. कुछ बिजनेस ने थ्राइव भी किया, कुछ ने बहुत डाउन किया, और हमारी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा डाउन फेल किया बिकॉज हमें सबसे पहले बंद किया गया और सबसे लास्ट में खोला गया. बिल्कुल. तो उसमें हमारी बहुत सारे टीम्स मेंबर्स ने छोड़ा, किसी ने, और हम उनमें से थे जो हमें लगा नहीं, हमें सोचना चाहिए. सो हमने सैलरीज पे की. पूरे कोविड के ड्यूरेशन में भी हमने ऑफ कोर्स 100% नहीं की, जितनी हम कर पाए हमारी कैपेसिटी से हमने की. जिसकी फैमिली का जैसा स्टेटस था उस हिसाब से की. उसके बाद हमने फेस किया कि वो लोग जो पूरे 4 महीने 5 महीने रह के घर में सैलरी लिया, दे डिडंट टर्न बैक. They said no, we are not joining you back. So that was a phase where we thought ki what we did was correct or not. Yes. Of course I felt cheated, I felt hurted ki I did so much for you, I paid it from my own this thing. Of course वो business से कमाया हुआ है, पर फिर भी बिल्कुल. But उसमें मुझे एक चैलेंज ये मिला कि वो उनका माइंडसेट है. मैंने अपने आप के लिए सही किया, मैंने अपने दिल से पूछा और वो सही लगा. बिल्कुल. वो नहीं आए, वो उनका माइंडसेट है. वो आके वापस डिच करके गए, वो उनका माइंडसेट. बिल्कुल. इससे ये नहीं बदलता कि मैं कैसी पर्सन हूँ. हाँ, that's true. I never changed after that also. Yes. I still help whatever I can do best to help anybody known to me. ये पूछने का मतलब यही मेरा मकसद ही वही था कि मैं जितने सालों से आपको जानती हूँ, मैंने आप में कभी भी नाराज हो या स्ट्रेस में हो, या जब भी मैं आपको मिली, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक, यू ऑलवेज लुक पैशनेट.
जब भी मैं Apurva, आपको one मिलती thing हूँ, is all very clear in my mind. Nobody wants to listen to your sob story. yes, We all have sob stories in our yes, life, but nobody comes to you or wants to meet you to listen to your sob story. yes, that's true. So the moment lesser you cry or crib about things happening in your life, the universe will always give you the best. बट ये एक चीज है आप में कि जैसे अभी मैंने कहा कि मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखती हूँ, सब मुझे भी ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है, ऑलवेज थिंक के ये मैम कितने मतलब सफर किया है, स्टिल शी स्टैंड स्ट्रांग, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ये Definitely. चीज कर सकती हूँ. हर तो कोई ये कर एक सकता है. एनर्जी आती है आपको देख के, या आपके बारे में अगर सोचते भी है, इंस्टाग्राम पे आपको हम देखते हैं, रील बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो इट फील्स लाइक के हाँ एनर्जी है, हम भी कर सकते हैं. अगर कुछ होता है तो ऑफ कोर्स सपोर्ट के लिए आप हमेशा रहते हो हमारे Definitely, साथ, always. बट इट फील्स सो मच एनर्जेटिक. Thank you so much. आज के जमाने में स्टाफ मिलना सबसे बड़ी मुश्किल है. मिलना ही मुश्किल है तो वो सस्टेन भी नहीं हो पाते उतने अच्छे से. तो मैंने देखा कि आपके पास जो भी स्टाफ है, ऑलमोस्ट अभिजीत है, वृषाली है, जो मैं खुद मतलब बहुत कम आती हूँ सैलून पे, स्टिल मैं पहचानती हूँ उनको. तो ये मतलब ऑलमोस्ट 8-10 साल से आपके 11 साथ है, साल. ऑलमोस्ट 11 11 साल years. से. तो मतलब आप किस तरीके से स्टाफ को मैनेज करते हो? स्टाफ मैनेज करना, स्टाफ को पहले तो स्टाफ नहीं समझना. मेरा तरीका थोड़ा अलग है. अभी जितने मैं नए सैलून ओनर्स से मिलती हूँ उनका सोच थोड़ा अलग लगता है मुझे. आई फील हर्टेड ऑल्सो समटाइम्स. पहले तो आई फील treat them as human beings, treat them as a person, not your subordinates or somebody who is lower at work. दूसरा, उनको उनकी जब तक ग्रोथ नहीं दिखेगी वो आपके पास नहीं रहेंगे. उनको उनकी ग्रोथ पे, उनके अच्छे काम पे उनको अप्रिशिएट करना, उनके जो ड्यूज है उनको टाइम पे देना, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को भी समझ के लेना. जैसे वो आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी प्रॉब्लम्स को वो समझ के ले, वैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स को भी आपको समझ के लेना चाहिए. मैं देखती हूँ कि घर में कोई डेथ हुई किसी की, वो बेचारा 8-10 दिन, ऑफकोर्स कोई 10-12 दिन छुट्टी जाएगा, 15 दिन छुट्टी जाएगा. अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेटिव की डेथ, लोग नौकरी से निकाल देते हैं. वी कांट गिव यू लीव फॉर 15 days. कम ऑन मैन, आपके घर में भी ये काम ये हो सकता है, किसी के भी घर में हो सकता है. That's true. या किसी की कोई इंजरी हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का कोई और प्रॉब्लम है. हम गर्ल्स का अलग प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे. उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को अपना समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जितना आप कर सको. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, आई बिलीव. ओके. दूसरा है उनकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनको और इम्प्रूव कराना विद अ पॉजिटिव वे. तुम्हें नहीं आता है, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू देम. You have to be polite, you have to be humble. The way you are at home with your children, treat them like your own children. Okay. I believe कि आप उसमें जितना unity, जितना smiling, जितना bossy कम रखेंगे. Of course कहीं जगह पे आपको bossy nature दिखाना पड़ता है, कहीं जगह पे I also scold them when they are wrong, and then they accept that scolding very positively because उनको पता है कि यहाँ वो सच में गलत थे. बट जहाँ वो सही है उनको अप्रिशिएट करना, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, उस चीज को अप्रिशिएट करना, या उनको कोई विजन देना कि भाई आप यहाँ से इसके आगे यहाँ जाना है. उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, नए नए ट्रेनिंग्स लाना, उनको आगे बढ़ने का जोश देना. बिल्कुल. प्लस उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. You have to really trust your team if you are there or you're not there. Clients हमेशा सही नहीं हो सकते. बिल्कुल सही बात है. Clients होते हैं ट्रिकी. उस ट्रिकी क्लाइंट के सामने if you demean your team, you are really hurting not only one single person, you are hurting everybody. Yes, yes. So आपको पहले उस जगह की, उस सब्जेक्ट की रूट पे जाना चाहिए. क्या क्लाइंट ने बोला, क्या आपके टीम ने बोला, एक्चुअली क्या हुआ. अब तो हम सबके सैलून्स में सीसीटीवी है, हम वो भी देख सकते हैं. प्लस यू शुड अंडरस्टैंड इट, लिसनिंग टू बोथ द स्टोरीज, देन कम टू अ डिसीजन.
क्लाइंट ने आपको कॉल किया, you were not there, he called, or and then you're just scolding your team. That's, I don't think it's correct. You have to understand everything and then take a decision, then take a call. I've always done that. And try to stand by them. बिल्कुल. Because client तो शायद आज के बाद नहीं आएगा या आएगा, हर बार सीन करेगा, ऐसे आते हैं. बिल्कुल. हर सैलून इंडस्ट्री, हर कोई ये फेस होता करता ही है. बिल्कुल. ठीक है, सर्विस कर ली, बाद में एक रिव्यू डालने की धमकी देना और आपको डिमोटिवेट करना. ओ नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज comparing you with other brands, other places. वहां तो इतने में हो रहा है, why you are high charge. Exactly. So it is not about anything. You have to believe what your team is doing, what you are doing is the best possible endeavor to give the best service. So for that, I think I have always stood by my team. Okay. And I have never treated them my subordinates. I have always treated them as equal as I am. Yes, yes. I sat with them for their food. I have gone to their places for occasions. And I think that is how we have built that relationship. More than team, I think it's my own family now. Yes, yes. इसी के लिए तो मैंने ये पूछा था आपको कि मतलब मैं खुद जानती हूँ इतने साल से आपको और आपके साथ जो आपके स्टाफ है उनको भी, एंड दे आर ऑल्सो वेरी लॉयल. ये जैसे हम बोलते हैं ना ताली, वो लॉयल्टी देने के लिए आपको भी उनके साथ वो लॉयल्टी खड़ा रखनी रहना पड़ेगी. पड़ता है. बिल्कुल. आपको उन पे वो ब्लाइंड ट्रस्ट देना पड़ेगा. I'll tell you one very small thing. I never sit on my counter. I never sit on my reception. It's always them. They are dealing with cash inflow. They are dealing with swipes. They are dealing with GPay. They are doing the daily closing. Everything they are doing. Okay. To give them that vision, they are running the show. हाँ, बिल्कुल. Basically, I give them that freeness, that command that whatever you're doing is the best. If you need any support from me, I'm there. Yes. तो वो उनको वो फ्रीडम देना कि हाँ ये तुम्हारा ही प्लेस है एंड यू आर रनिंग दिस, वो फ्रीडम देने से ही आई थिंक वी कैन रिटेन देम. यस, दैट्स ट्रू. लेकिन जैसे मतलब मेरे पास कि इतने 27 साल में बहुत लोग आए, स्पेशली जब से हमने एमोस शुरू किया 2013 से अभी तक. I think more than some 150 people have come and joined and gone. Okay. But उसमें से बहुत सारे आज भी हैं जो बात करते हैं. हाँ, बिल्कुल. I think that is what I have earned. Yes, yes. क्योंकि मैंने देखा है लोग सैलून छोड़ते हैं उसके बाद बॉस को गालियां ही देते हैं. ये भी हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं तो भी जहां से आ रहे हैं वहां पे उनको अब्यूज करते हैं. So somehow I don't like that culture. जो जा रहा है उसको भी अच्छे से भेजो ना. बिल्कुल सही बात है. आप कहीं ना कहीं किसी से शायद मिल जाओ, सही बात तो उसको वो हार्ड फीलिंग देके क्यों भेजना. हाँ, that's true. जिसका जो किस्मत है वो उसी की किस्मत है. किसी की किस्मत कोई ना ले सकता है ना लेके जा सकता है. सही बात है. जो तुम्हारी किस्मत में वो आएगा. यूनिवर्स इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स. बिल्कुल. जैसे कि अभी आप 2013 से अमोद सैलून स्टार्ट है, तो एज अ बिजनेस वुमन पूरा 24/7 दिमाग बिजनेस में रहता है हमारा. तो ऐसे टाइम पे फैमिली एंड बिजनेस दोनों को बैलेंस करना ये बहुत बहुत बड़ा टफ टास्क है एज अ फीमेल, जो कि हमारी इंडस्ट्री सोचती है फीमेल के बारे में, एंड एक फीमेल के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ मदर, एज अ वाइफ, एक एज अ बहू होती है. हाँ, वो तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बिजनेस वूमन, ये सारा आपने कैसे बैलेंस किया? आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यू नीड टू नो व्हाट इज प्रायोरिटी. ओके. आपकी प्रायोरिटी क्या है और किस टाइम पे क्या चीज प्रायोरिटी है. दूसरी चीज उसमें आपकी फैमिली कैसी सपोर्टिव है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आई एम टचवुड वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड बहुत बहुत सपोर्टिव है. मेरी डॉटर बहुत छोटे से वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गई है, अपना सब कुछ खुद देख लेती है. ग्रेट. सो वो दोनों जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है लाइफ इजी है. दूसरी बात ऐसा है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बांटनी पड़ती है. व्हेन यू आर अ वर्किंग लेडी एंड इवन योर हस्बैंड इज वर्किंग, सो वी हैव टू distribute the responsibilities so that the boat sails through very smoothly. You have to of course compromise on many things.
somewhere you have to compromise on work, somewhere you have to compromise on family life, like weekends. हम वीकेंड पे सुपर बिजी होते हैं बिल्कुल, और लोग वीकेंड पे फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं. कई बार मेरी डॉटर सुबह संडे को उठ के बोलती है, आप क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो, मम्मा थोड़ा तो रुक जाओ, आज छुट्टी है. एंड आई एम पैक्ड विद अपॉइंटमेंट्स. So that is one thing I really feel that we lack because of our industry. But then we compromise it on going on breaks, going on holidays. So that is there. But when we go on break, I leave all the phones in the office and go. I don't work at all. Okay. So that is what is setting your priority. That's like true. my daughter की PTM है या उसके स्कूल का कोई इवेंट है या उसका कोई और इवेंट है. So I know that I have to be there with my family at this time, and I know where I have to be in my workplace. Okay. So that ways I give that space to my team also. किसी के घर में कुछ है, किसी के बच्चे के, सबके सब मैरिड है हमारे यहाँ, सबके बच्चे हैं, सबके स्कूल्स के फंक्शंस होते हैं, एनुअल डे है, PTM है. So I give that space to my team also. When I expect them to be there when I am not there, so I have to be there when they need that space. Yes. So that is how I think I am able to manage कि फैमिली सपोर्ट है, टीम की सपोर्ट है, और हमारा इंडेवर है कि हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करते हुए एक हैप्पी लाइफ लीड करें. तो उस वजह से ही आई थिंक बहुत कंफर्टेबली चल रहा है अभी तक. एंड आई विद गॉड्स ग्रेस आई थिंक इट विल मूव अहेड. यस, ये होगा ही, बिकॉज आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि हर कोई आपसे बहुत दिल से कनेक्ट होता है. तो कोई ऐसे सोचेगा भी नहीं कि आपको हर्ट करे. तो ये एक चीज है, मतलब जितना मैं अभी आपसे मिली हूँ, मैं आपको जितना जानती हूँ, थैंक यू. आपको कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि जानबूझ के कोई चीज आपके साथ हो जाए. ऐसे कोई नहीं सोचेगा. It's just I think it's just my endeavor to be kind to everybody whoever walks in my life, so that किसी को हर्ट करके क्या, मतलब I don't understand why to do that. वही तो आपका कमाल है कि अपने आप लोग आपसे बहुत अच्छे से अटैच्ड हो जाते हैं और अच्छे से. एक ही जिंदगी है और बहुत छोटी है और उसका कोई भरोसा नहीं है कब चली जाएगी. तो किसी को हर्ट करके क्या मिलेगा. किसी के लिए अगर हम इतना सा भी कुछ कर पाए, और वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ गए, वो हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज अब हमारे में वो पोटेंशियल है. ठीक है. तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फेज भी देखा है जब हम कुछ भी नहीं थे. सो आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम वेरी स्क्रैप. From there to here, it does not give me any pride. It just give me more humbleness, more down to earth. कि अपना पास्ट मत भूलो, तुम कहाँ से आए हो वो मत भूलो. मैं हमेशा अपनी टीम को भी बोलती हूँ. I have few team members, वो भी ऐसे ही स्ट्रगल करके आए हैं आगे. तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बेटा अपना पास्ट मत भूलो, वो तुम्हें हम्बल रखेगा. बिल्कुल सही बात. That's what is my way of working and living my life. Great. सैलून में हमेशा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हमेशा रेट के ऊपर बार्गेन करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि हमेशा रेट के ऊपर ये डिपेंड होते हैं या फिर सर्विस भी हमारी उतनी ही मैटर करती है? See, this industry has variant aspects, variant outlets, and variant ways to give services. ठीक है. So rates of course मैटर करते हैं, बट रेट वहाँ मैटर करते हैं जहाँ आपका सैलून है और उस एरिया का, उस लोकेशन की कैपेसिटी किस तरह का क्लाइंट अट्रैक्ट करने की है. आप उस हिसाब से अपना रेट कार्ड बनाते हैं, सर्वे करते हैं और फिर अपना रेट कार्ड बनाते हैं. बट येस, एज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्लाइंट 50 जगह, 4 जगह, 10 जगह फोन करता है, गूगल इंक्वायरीज करता है, फोन पे बोलता भी है मैं जहाँ रेट सही होगा वहीं जाऊंगी या वहीं आऊंगा. आप पहले रेट बता दो, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं सोचूंगी. मैं इतनी दूर आऊं और आप बाद में मुझे रेट अलग बताओ, मुझे नहीं चलेगा. तो बट मुझे ऐसा लगता है रेट बहुत ऑफ कोर्स अब आज की उसमें मैटर करता है, बट सर्विस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
आप क्या रेट ले रहे हो उसका आप 200% सर्विस देना आपका इंडेवर होना चाहिए। अगर आप 100 रुपए ले रहे हो तो क्लाइंट को वो 200 रुपए वर्थ दिखनी चाहिए, तब वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा। सो मुझे लगता है रेट से ज्यादा आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि फोन पे ये मतलब मैंने खुद ने भी फेस किया है कि क्लाइंट बहुत सारी, स्पेशली हेयर में ज्यादा सवाल ऐसे आते हैं, हर चीज में, बट हेयर में एक ये भी होता है कि हमको एनालिसिस करना पड़ता है। फोन पे अगर हम कुछ बोलते हैं और एक्चुअल में आने के बाद पता चलता है कि इनके बालों में तो बहुत कुछ है, तो उसको हमें डबल काम करना पड़ेगा। हमें नेचुरल बाल मिलते नहीं है। हाँ, वो तो हर बहुत किसी मुश्किल के बालों में कुछ ना कुछ होता ही है, तो वो तो बहुत मुश्किल है कि नेचुरल बाल मिलना। बट आने के बाद समझ में आता है कि हमने अगर कुछ 2000-3000 रेट बोला है फोन पे, और एक्चुअल आने के बाद समझ आता है कि इनके बालों पे तो हमको मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये 3-4 हजार में तो होगा नहीं, उसके लिए और ज्यादा हमको टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट इन्वेस्ट होगा, और हमारी एनर्जी। क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। सी प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी वेरिएशंस हैं, कॉस्ट वेरिएशंस हैं, सो वो क्लाइंट को पता नहीं होता है। वो ये सोचते हैं वहां ये सर्विस 200 रुपए में हो रही है, आप 500 क्यों ले रहे हो। बट वो 200 रुपए का बाद में क्या रिजल्ट आ रहा है, बाद में आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे क्या रिजल्ट दे रहा है, और आप जब 500 रुपए का कर रहे हो तो वो आप बाद में कैसा रिजल्ट दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट मायने रखना चाहिए क्लाइंट्स को। सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव देखना, आई डोंट थिंक कि सैलून में खास करके जहां आपका स्किन और हेयर मैटर करते हैं, क्योंकि एक बार आपका हेयर जल गया या डैमेज हो गया वो रिपेयर मुश्किल है। बिल्कुल, स्किन डैमेज हो गई वो रिपेयर मुश्किल है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चाहे साल में 2 बार कराओ या 1 बार कराओ या महीने में 1 बार कराओ या 4 बार कराओ, बट आपका जो पोटेंशियल है, अगर हर महीने आप 200 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब मेरे को लगता है आप 3 महीने में 600 रुपए इन्वेस्ट एक अच्छी जगह करो, सो दैट आपका स्किन और हेयर मेंटेन रहे। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या पीस ऑफ माइंड? सक्सेस, what do you define success as? Yes. Success is seeing yourself very high or seeing yourself from where you have come. So मुझे ऐसा लगता है हम जहां से आए हैं और जहां पहुंचे हैं, उस जगह, उस जर्नी, उस पूरे सफर को ग्रैटिट्यूड देना सक्सेस है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्स इज ऑलवेज माय टॉप प्रायोरिटी एट एमोस। Even I have told my team very clearly, client satisfaction is our top priority. Always using good brands of products, always using good quality of products, always not compromising on any things, any pointers like hygiene, like cleanliness, like giving good service, going out of the way to help the client to achieve what they are dreaming of. For me, एक क्लाइंट जब वो अंदर आता है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट लेके आता है, आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, ये हमें बेस्ट देंगे, मैं जैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ इससे भी और मुझे इनहैंस करके भेजेंगे। सो वो जब सेटिस्फैक्शन आता है और जब वो एक स्माइलिंग फेस से, एक पॉजिटिव वाइब से आपके यहाँ से बाहर जाते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी अ लॉट। ऑफ कोर्स मनी is there that makes the business run, but wo money is the part when the satisfied client is walking back to you, giving you referrals, that brings money. Yes, and that makes the business flow. So for me, first is client satisfaction, of course second is money, because we all need it, it's the need of the living standards. Yes. ठीक है, and that only will make you maintain what you are doing. So money is also important. And the third thing is the trust you develop. जब आपके पास कोई आता है, वो अपने सारी हमारा जो काम है, जिसे बोलते हैं एक डॉक्टर, एक टेलर और एक ब्यूटिशियन या एक हेयर स्टाइलिस्ट, लोग सालों साल नहीं छोड़ते, बिकॉज आप वहां आके एक कंफर्ट जोन में बैठते हो। बिकॉज हमारा काम ऐसा है, जब हम किसी की बॉडी को फिजिकली टच कर रहे हैं, और कोई भी प्रोफेशन हो, आईटी बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो, आप कहीं किसी की बॉडी को टच नहीं करते हो। सिर्फ एक बुटीक है, एक टेलर इंडस्ट्री है, एक डॉक्टर है और एक सैलून इंडस्ट्री है, जहां आप किसी की बॉडी को टच करते हो फिजिकली।
सो वो आपको जब कोई परमिशन दे रहा है टच करने को, दैट मीन्स दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, Yes. दैट यू विल डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर देम. Yes. Yes. सो आई थिंक वो ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमें वो इंडेवर लेना है, लेते रहना है कि हम बेस्ट दें, अपना 200% दें, ताकि उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले. Yes. अब एक छोटा सा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे कुछ चीजें पता चली है आपके बारे में जो मुझे ऐसे लगता है कि विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, और आज के ज़माने में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ना सुनने को मिलती है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी. तो आपके शादी के माहौल के बारे में मैं जानना चाहूँगी, जो कि मुझे पता है कि आपकी लव मैरिज थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है आपसे, तो आप उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए. Purva, this is really very personal, Yes. but I'll just go in a brief. I'm married to an army officer. Yes. He's Major Malayacharya, and he's retired now as he's a short service officer. 2006 में एक ऑपरेशन ऑप पराक्रम रहा था, जो आफ्टर कारगिल के बाद, जिसमें he was posted in the fields area, and he sustained a spinal cord injury there. And after that he is wheelchair bound. It was in 2001. We got married in 2004 after his injury. Of course, I met him before his injury in 2000. Yes. As his sister was my neighbor, so Okay. he visited his sister for Raksha Bandhan, so there we visited. So after that we used to just speak on phone once in 6 months, or if I'm there at his sister's place, so we used to Okay. speak. But when he sustained this injury, after that when he was in hospital, so he used to call me as a friend, like to feel good about it. And I don't know, during course of time speaking to him off and on, it just clicked. And when we decided that yes, we'll get married, of course it was a very, what should I say, it was not an overwhelming thing for my family, the decision I took, because of course no mother father wants their daughters to be compromised. Yes. But I stood strong with my decision. Of course it was a big fight with the family, but I am really blessed that my grandparents, my nani, nanaji, my mama, mami, my parents, with the due span of time, and other close friends, they stood by my decision. And finally we got married in 2004. And it, to our surprise, one of his friend's father, who got a friend with him, he shot our wedding, and it was in Times of India front page with our picture. Wow. So which was not known to us. Yes, He was just asking great. us some random questions, and we just answered, and we were not aware that tomorrow Yes. we will be a star in the Yes. newspaper. And since 2004 we are going steady, and hope we go steady ahead also, because of course we sail the boat with both the hands. He is very, very supportive. Yes. Although with all the medical complications he has, we stand by each other with everything, with an endeavor that love is always there. Yes. And I think love can change anything. एनीथिंग, ये तो मतलब ये आपको देख के समझ आ जाता है, बट आज के जमाने में ये चीज देखना सुनना इट्स वेरी रेयर, बहुत ही मुश्किल है. तो मतलब I मुझे ये think he gives me my positive energy. He is a very, very positive person, very enthusiastic person. You have met him, I think, yes, once. yes, So he carries so much of energy Yes. in himself. With all those problems also, he is a person who will inspire anybody. yes, So I think he is one of my strongest inspiration in life, that the show must go on. go on. Live life king size. So thank you so much मैम अल्केमी टॉक्स के पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने एक फोन कॉल पे मुझे हाँ बोला तुरंत, कोई भी आगे पीछे कुछ सवाल नहीं किया. सो यू ट्रस्ट ऑन मी, तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच. एंड मुझे विश्वास है कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, जो ऑलरेडी काम कर रही है, और जिनको
किसी एक मुकाम पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको हमने काफी अच्छी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है। तो उनको अच्छे से सवाल के जवाब अगर उन्होंने अच्छे से गॉडली सुने रहेंगे तो उनको डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे आए और आपने इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Apurva, for giving me this opportunity, giving me this vibe that yes, I am something now. Yes. Of course, 27 years का experience छोटा नहीं है, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे ups and downs और struggle है, but I always believe that universe is always there, showering something for you. You have to just keep your hands open to receive it. Every change in your life, in your career, you don't know what is there ahead. So take it positively, take it like a challenge, and always thrive to move ahead in life. Yes. The only thing I said earlier, now also, never settle. Yes. The main thing is never settle. The moment you are in a comfort zone, you will never grow. You have to come out of your comfort zone to thrive ahead, to grow ahead. Yes. So thank you very Thank much, you. Apurva, for giving me this wonderful opportunity. Yes, thank you so much. Thank ma'am. you.